हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम पांडे और इस फाउंडेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आज हम एक नया मॉड्यूल शुरू करेंगे दैट इज़ विल बी डीलिंग विद द डिज़ाइन ऑफ द शैलो फाउंडेशन एंड ऑल्सो विद द डीप फाउंडेशन. Okay, so before we begin with the designing of the shallow foundation or the strip foundation or the spread footing, we will be first discussing the numericals of the previous module and then we will move on to the topic. So let us begin with the numericals that we discussed in the last class. We had started discussion on this numerical. Strip footing 1.5 meter wide with its base at a depth of 1 meter is resting on a sand stratum. Okay, so the strip footing, it's, if I talk about its width, it is 1.5 meters and it is at a depth of 1 meter. So if it is the ground level, तो इस ground level से this is at a depth of 1 meter. Determine the ultimate bearing capacity of the footing using Terzaghis theory, Meyerhof theory and Hansen theory. Meyerhof theory and Hansen theory include three major things, that is the shape factor, depth factor and the inclination factor. Okay, but in this case here it is given that you have to ignore the embedment effect. So we will be ignoring these two things, okay, these factors here, and we will use a simple equation. Gamma d is given to you as 17 kN per meter cube, phi dash, that is the internal friction angle, is given as 38 degree and the soil is having no cohesion. Okay, so we already know that Terzaghi's equation is given by CNC plus QNQ plus half B gamma N gamma, that is the ultimate bearing capacity equation there. So we already always will be needing this Q, okay, that is the surcharge here. So surcharge you already know that it is given by gamma into df. You can see in the figure that this df here is 1 meter and this width is equal to 1.5 meters. So we can easily calculate this gamma into df, that is 17 into 1. So this comes out to be 17 kilonewton per meter square and the c dash is equal to 0. So let us now see, as per Terzaghi's theory, the equation is given by the ultimate bearing capacity, it is given by CNC plus QNQ plus half B gamma N gamma. So we already know that C is equal to 0, so this entire term will be 0 there. Now we will be putting on the values in these two terms here, okay, to get the ultimate bearing capacity. अच्छा, अगर हम इसकी बात यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे दो फैक्टर्स और हैं, दैट इज एन क्यू एंड एन गामा. अब एन क्यू और एन गामा की वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, फाई के ऊपर, दैट इज द इंटरनल फ्रिक्शन एंगल. सो वी ऑलरेडी नो दैट सी इज इक्वल टू 0, तो एन सी का हमने यहाँ पे वैल्यू इसीलिए नहीं ले रखा है बिकॉज हमें काम में नहीं आएगा वो. सो we can easily obtain for phi is equal to 38 degree NC also, and you can place the values, but ultimately the term including this NC will be equal to 0, like in this case you have seen here, okay, like in this case here. So we have already known that for Terzaghi this NQ and N gamma are 60 and 75, for Meyerhof it is 48.9 and 64, and for Hansen it is 48.9 and 56.2. Achha, remember here one more thing, that Meyerhof and Hansen, these two theories gave the value of this NC and NQ same. जो difference आता था इन दोनों में वो किस में आता था, इस N gamma में. Alright, so you can see here that this is 64 here and this is 56.2. तो ये सब चीज़ें भी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते चीज़ें आपको मेमोराइज होने लग जाएंगी, समझ में आने लग जाएंगी. सो नाउ लेट अस सी द Meyerhof equation. Meyerhof equation क्या कहती है? Meyerhof equation gives the ultimate bearing capacity as CNC, साथ में क्या रहता है यहाँ पे, S, D and I, these three factors are there. Similarly यहाँ पे भी ये तीन फैक्टर रहते हैं और in this gamma term also there three factors are there, but we are ignoring the embedment effect, so we will not be including these three factors. So now let us see the first term, it will be equal to 0 because cohesion यहाँ पे क्या है, 0, soil में कोई भी cohesion नहीं है. Q and Q, अब जो भी फैक्टर ये एन क्यू की अगर हम बात कर रहे हैं, जो भी ये एन क्यू है, दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर दिस Meyerhof थ्योरी. एंड सिमिलरली एन गामा की वैल्यू भी क्या होगी, Meyerhof के द्वारा जो दी गई है, दैट इज दिस 64. बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, हमने कुछ नहीं करा है, सिर्फ वैल्यूज़ रख दी हैं. सो वी गेट दिस एज 1647 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस Hansen's थ्योरी, Hansen's थ्योरी में भी सेम चीज़ रहती है. यहाँ पे भी तीन फैक्टर्स आएंगे, दैट इज शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर और इंक्लिनेशन फैक्टर, बट वी आर इग्नोरिंग दीज थ्री टर्म्स हेयर. सो द ओनली डिफरेंस विल बी देयर इन द एन क्यू एंड एन गामा वैल्यूज. कोहेजन टर्म इज 0, सो दिस विल बी इक्वल टू 0. एन क्यू will be same as, because NC and NQ are the same values in both the cases of Meyerhof and the Hansen.
अगर हम एन गामा की बात करते हैं तो एन गामा की वैल्यू विल बी डिफरेंट, दैट इज 56.2. सो वी आर पुटिंग द वैल्यूज इन देयर, जहाँ पे बी की वैल्यू आपकी 1.5 मीटर है और जो डेप्थ है डेप्थ ऑफ द फुटिंग दैट इज 1 मीटर, और गामा की वैल्यू आपको पता है दैट इज 17 kilonewton per meter cube. So this value comes out to be 1545 kilonewton per meter square. So you can see that in the three equations here, the ultimate bearing capacity which is obtained, these are different values. So when you apply the theory, some theories give you a safer value, some give you a very much lesser value. Okay, so you have to see what are the factors which are involved and then apply the equation. Now let us see another numerical here. First is this here. Calculate the net ultimate bearing capacity of a rectangular footing. So a rectangular footing is to be designed which is 2 meter by 4 meter in plan, founded at a depth of 1.5 meter below the ground surface. So the depth of the footing is given to you as 1.5 meter. The load on the footing acts at an angle of 15 degrees to the vertical and is eccentric in the direction of width by 15 centimeter. तो एक eccentricity की भी बात कर रखी है, इसको हम आज समझेंगे when we will discuss the numerical here. The saturated unit weight of the soil is 18 kilonewton per meter cube. The rate of loading is slow and hence the effective shear strength parameters can be used in the analysis. Next is natural water table is at a depth of 2 meter below the ground surface. Take phi dash is equal to 25 degrees and c dash is equal to 15 kilonewton per meter square. So these are the some data that is given to you. Now you have to use the IS code method to get the Q and U वैल्यू. अच्छा, जब हम IS कोड मेथड की हम बात कर रहे हैं तो IS कोड मेथड के द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया है विच इज दिस, Q and U इज इक्वल टू CNC इंटू SCDCIC इंटू प्लस Q इंटू NQ माइनस 1 इंटू SQ DQIQ प्लस 0.5 B गामा N गामा इंटू S गामा D गामा I गामा इंटू W डैश. और ये W डैश क्या है यहाँ पे, दिस W डैश इज नथिंग बट द वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर. तो ये जो है एक बेसिक आपको इक्वेशन पता है IS कोड मेथड की. नाउ यू हैव टू डिटरमिन द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन दिस इक्वेशन. आपको यहाँ पे फाई डैश की वैल्यू 25 डिग्रीज दे रखी है जिसकी मदद से आप NC NQ N गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, अनदर थिंग दिस C डैश इज गिवन, तो दिस वैल्यू विल बी ऑल्सो ऑब्टेन फॉर यू. कोई अगर वैल्यू आपको चेंज करके दी जाती, ओके, अगर C की वैल्यू अगर आपको कुछ इन केस इफेक्टिव टर्म्स में ना रहती तो जो भी आपको वैल्यू दी होती तो आप वही वैल्यू यूज़ करते वहाँ पे. Okay, and also one thing more you can see here that the rate of loading is slow, that is given to you. Okay, when the rate of loading is slow and then you can easily apply the effective stress parameter. अगर rate of loading fast है यानी टाइम कम दिया गया है, ड्रेनेज के लिए अगर टाइम कम दिया गया है तब उस केस में यू हैव टू यूज़ द टोटल स्ट्रेस पैरामीटर्स. तो यहाँ पे तो रेट ऑफ लोडिंग स्लो है, सो यू कैन ईजिली यूज़ द इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर्स. तो यहाँ पे फाई डैश और C डैश को हम यहाँ पे यूज़ कर ले रहे हैं. Also one thing additional is given, that is this phi, this alpha is equal to 15 degrees. उसको अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से वो यूज़ में आता है. So let us see and determine the different parameters here. So first thing first here, this for phi dash is equal to 25 degree, we can obtain the values of NC, NQ and N gamma. These three are the values which are obtained from the table that is given to you for the different angles. Or you can also do one thing, that you can apply the different formulas that were mentioned while we were discussing this IS code method in the class. Also one thing is there that gamma is equal to gamma saturated, that is given to you, that you will be taking in this numerical, because it is said that the water table is at a depth of 2 meters. But कोई और डेटा यहाँ पे कुछ नहीं हमारे पास है कि हमें लेट्स से G की वैल्यू दे रखी हो या फिर वॉइड रेशियो की वैल्यू दे रखी हो, सो दैट वी कुड हैव फाइंड आउट द अनदर जो एक्चुअल गामा की वैल्यू होगी. सो वी विल बी टेकिंग दिस गामा सैचुरेटेड ओनली, दैट इज 18 kilonewton per meter cube. Now the depth of footing is given to as U as 1.5 मीटर. अच्छा, इसमें एक डेटा आप ध्यान रखिएगा कि रेक्टेंगुलर फुटिंग की बात करी गई है तो 2 मीटर बाय 4 मीटर इन प्लान. तो जब आप टॉप व्यू देख रहे होंगे तो कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, है ना. दिस इज 2 मीटर्स, दिस इज द टॉप व्यू, ऑलराइट, एंड दिस इज द 4 meters. So this is the top view of the rectangular footing. Also it is a depth of 1.5 meter below the ground surface. यानी कि अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूँ, दिस इज द ग्राउंड लेवल, तो यहाँ से आप अगर बात करते हो दिस इज इक्वल टू 1.5 meters. Okay, so this footing, this rectangular footing is at a depth of what, 1.5 meters. तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे सेटअप आपको दिखाई देगा. So now let us move on.
तो डेप्थ की वैल्यू आपको यहाँ पे 1.5 मीटर दे रखी है, सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द सरचार्ज. Surcharge is given by gamma into df, so you can use this gamma as 18 and df as 1.5, so this comes out to be 27 kilonewton per meter square. And this eccentricity is given to you as 0.15 meter, okay, 15 centimeter वहाँ पे आपको दे रखी है value. Now whenever the eccentricity is there, all right, so you have to apply it in the numerical there and you have to find out the effective width there. अगर मान लीजिए ऐसा होता कि effective width दोनों ही डायरेक्शन में होती, लेंथ की डायरेक्शन में भी होती और विड्थ की डायरेक्शन में होती, तो उसमें आपको क्या करना होता, दोनों ही डायमेंशंस में आपको एसेंट्रिसिटी की वैल्यू लगानी पड़ती. सो द इफेक्टिव विड्थ विल बी नाउ b डैश, दैट इज गिवन बाय b माइनस 2 टाइम्स ex. ओके, सो ex इज व्हाट 0.15. सो व्हेन यू पुट दिस वैल्यू हियर, सो यू गेट दिस b डैश एज 1.7 मीटर. तो जो इफेक्टिव विड्थ है वो 1.7 मीटर्स है. एक्चुअल जो विड्थ थी दैट वाज 2 मीटर्स और जो अब नई विड्थ मिल रही है दैट इज व्हाट 1.7 मीटर. अच्छा, अब ये एसेंट्रिसिटी का काम क्यों आया, अब थोड़ा सा एसेंट्रिसिटी को हम समझते हैं. यहाँ पे देखिएगा, इफ आई टॉक अबाउट प्लान, ओके, दिस इज द एरिया, दिस इज अ रेक्टेंगुलर एरिया जिसका लेंथ है कुछ और एक विड्थ है. इफ आई से दैट दिस इज द सेंटर लाइन, ओके, दिस इज द सेंटर लाइन और यहाँ पे ये भी एक सेंटर लाइन है, तो ये इसका कुछ सेंटर पॉइंट रहा होगा. दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ व्हाट L क्रॉस B एरिया. अच्छा, अब इसमें एक चीज़ समझिएगा, अगर मान लीजिए लोड यहीं पे लग रहा है एट दिस पॉइंट ओनली, दिस पॉइंट हेयर, सो दिस इज व्हाट कंसेंट्रिक लोडिंग, क्योंकि एकदम सेंटर में लोड लग रहा है. बट कुछ चेंजेस हो जाते हैं और लोड क्या हो रहा हो, लोड यहाँ पे लगे, लेट्स से यहाँ पे लग रहा है, तो वी कैन से दैट ये जो है सेंटर से थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया है. ऑलराइट, जब इधर शिफ्ट हो रहा है तो वी कैन से दैट दिस एसेंट्रिसिटी इज इन x डायरेक्शन, so this is ex. Okay, so we can easily say that this is ex. अच्छा, ये जो है इस एक्सिस से ये कितना ऊपर है आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज व्हाट एट सम लेट्स से ई वाई. तो ये एसेंट्रिसिटी का जो हम केस ले रहे हैं ये x डायरेक्शन में भी है और y डायरेक्शन में भी है, तो दिस इज द एसेंट्रिसिटी इन बोथ द प्लेन्स. अच्छा, जब हम इस यहाँ पे लोड की बात कर रहे हैं तो इफ आई टॉक अबाउट दिस थिंग हियर, ओके, एंड दिस इज द लोड, तो अब इसके लिए ये जो जोन है दिस विल बी नाउ द रेक्टेंगल दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट. अच्छा, अगर हम इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे समझिएगा कि इफ आई एम सेइंग दिस रेक्टेंगल, ओके, दिस इज द शेडेड रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट, जहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी, ओके, एंड दिस इज द लोड एट द सेंटर Q. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा कि दिस इज व्हाट ex एंड दिस इज व्हाट b by 2 minus ex. Okay, this length is what you can see that this is what b by 2 minus ex. Okay, because अगर आप इतने की बात कर रहे हो, this thing, this is what b by 2, this thing, this entire region is what b by 2. b by 2 में से आपने ex वैल्यू हटा दी, so this is coming out to be b by 2 minus में ex. So you can get this value here. Okay, so similarly अगर आप इधर की बात करते हो तो यहाँ पे भी यही चीज़ आएगी, what this will be same here, L by 2 minus ey. Okay, और जब आप इसकी लेंथ की बात कर रहे होगे तो that will also be what this thing, L minus 2 ey. तो जो नया रेक्टेंगल हमारे पास बन के आता है, ये जो नया रेक्टेंगल है दैट इज द शेडेड पोर्शन, तो इस शेडेड पोर्शन का जो विड्थ है दैट इज b minus 2ex and this L is what L minus 2ey. तो ये नया डायमेंशन निकल के आ रहा है. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट दिस एंटायर एरिया, तो यहाँ पे जो डायमेंशन है दैट इज व्हाट L इंटू बी, बट यहाँ पे जो नया डायमेंशन है दिस इज a डैश दैट इज व्हाट L माइनस 2ey, ओके, इंटू b माइनस 2ex. सो ये हम एसेंट्रिसिटी के केस में लेके चलते हैं. सो दिस इज द वे वी डू द एसेंट्रिसिटी पोर्शन. नाउ लेट अस सी the value of this water table correction factor. A water table correction factor depends on two things. First is the depth of the water table from the base of the footing, that is 0.5 meter from the base. Okay. Next is B is given to A as 2 meter, so you can get dw dash by B as 0.25. अच्छा, dw dash by B और w dash में एक correlation है which can be seen by this graph.
तो यहाँ पे आपको जो डी डब्ल्यू डैश बाई बी की वैल्यू है डेट इज़ व्हाट 0.25। अच्छा 0.25 है, तो लेट्स सी हियर कि अगर ये डी डब्ल्यू डैश बाई बी है तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं दिस इज कमिंग लाइक दिस, तो दिस करस्पॉन्ड्स टू लेट्स से 0.625 है ना। जो भी वैल्यू होगी करस्पॉन्डिंगली वट एवर बी द करस्पॉन्डिंग वैल्यू यू विल बी टेकिंग दैट वैल्यू एज द वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर। तो डब्ल्यू डैश की वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है 0.625। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट शेप फैक्टर्स, डेप्थ फैक्टर एंड द इंक्लिनेशन फैक्टर्स। अगर हम एस सी और एस क्यू की बात करते हैं, हम अभी आई एस कोड मेथड को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इस आई एस कोड मेथड में these are the shape factor and depth factor, the different formulas here. So you apply the different formulas, but you have to understand here कि जो b की वैल्यू है that is the width here. Now width here will be not this value, it will be what b dash, क्योंकि यहाँ पे एसेंट्रिक लोडिंग लग रही है। कंसेंट्रिक लोडिंग अगर होती तो हम फिर से वही चीज़ यूज़ करते, क्या हम यहाँ पे विड्थ यूज़ कर लेते, सिंपल। अगर हम एसेंट्रिक लोडिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बी डैश की वैल्यू यूज़ होगी। अगर यही चीज़ लेंथ की डायरेक्शन में भी अगर होता तो वहाँ पे भी हमें एल की जगह एल डैश को यूज़ करना पड़ता। सो वी आर सिंपली अप्लाइंग द फॉर्मूलाज हियर, बी की जगह यहाँ मैंने बी डैश रख रखा है, ओके। ऑल अदर थिंग्स आर वन एंड द सेम, सो वी गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द शेप फैक्टर्स, ऑफ द डेप्थ फैक्टर एंड द इंक्लिनेशन फैक्टर्स। नाउ विल बी सिंपली अप्लाइंग इट इन द इक्वेशन। जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं ऑफ दिस in the different terms, first term, second term and the third term, okay. Water table correction factor is there which is 0.625 that we have derived, or S gamma, D gamma, I gamma, SQ, DQ, IQ we have obtained from the table SC, DC, IC. So this comes out to be what 536.8 kilonewton per meter square. So this is the net ultimate bearing capacity which is given by the IS code for this question that we have discussed here. So now let us see one more numerical here, because we have to design a footing here. A square footing is required to carry a net load of 1200 kilonewtons. Determine the size of the footing if the depth of the foundation is 2 meters and tolerable settlement is 40 mm. The soil is sandy with n is equal to 12 and factor of safety is equal to 3. तो जो n की वैल्यू है that is what nothing but the SPT number. अच्छा डेप्थ की बात कर रखा है तो that is given as 2 मीटर। अच्छा यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस तरह से समझ सकते हैं आप कि दिस इज द ग्राउंड लेवल, तो यहाँ से 2 मीटर की डेप्थ पे यहाँ पे आपकी एक फुटिंग प्लेस्ड है। और फुटिंग कैसी है, फुटिंग ऐसी है कि दिस इज अ स्क्वायर फुटिंग। अच्छा जब मैं स्क्वायर फुटिंग बोल रहा हूँ तो अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो दिस इज लाइक दिस, इसका कुछ बी विड्थ है और दिस इज ऑल्सो बी, है ना। ये आपको टॉप व्यू है, ऊपर से देखने पे इस तरीके का दिख रहा होगा, बट हमें यहाँ पे विड्थ कुछ नहीं दे रखी है, वी हैव टू डिटरमिन दिस विड्थ ओनली। सेकेंड पॉइंट इज दिस दैट वाटर टेबल इज वेरी डीप, यानी कि वाटर टेबल का कोई इफेक्ट इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, ओके। सो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर जो लगते हैं वो सारे की वैल्यू 1 हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे इन सब डेटा से हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे। नाउ यू हैव टू यूज द टेंक्स इक्वेशन टू डिटरमिन व्हाट इज द साइज ऑफ द फुटिंग। सो लेट अस सी हियर व्हाट आर द डेटा गिवन। द नेट लोड इज गिवन एज 1200 kilonewton, depth of the footing is given as 2 meters, settlement is given as 40 mm, the SPT number is given to as 12 and factor of safety is given to as 3. Now if I talk about the Tenks equation, this is the Tenks equation here. There the QNS is given by 1.4 n minus 3 into b plus 0.3 by 2b ka whole square into S, that is the settlement here, into this CW, that is the water table correction factor, and there is this CD. CD is the depth correction factor. So this value we obtain it in kilonewton per meter square. So now let us see here what are the different parameters here that we have to determine. S की वैल्यू तो यहाँ पे 40 mm दे रखी है, where we have to don't do anything as such. CW के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे water table is very deep. अगर water table deep है तो कोई water table correction factor लगेगा ही नहीं. So this CW will be equal to 1. Okay. If we talk about this CD, तो CD की वैल्यू में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा. अच्छा n की बात करते हैं तो n भी आपको दे रखा है यहाँ पे b का दिक्कत है, यहाँ b आपको नहीं पता है, ओके। सो लेट अस सी कि जो b है और cd है वो कैसे निकालेंगे। तो cw की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज ओके, फॉर्मूला जो भी है, बट हमें यहाँ पे इसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज द वाटर टेबल इज़ वेरी मच डीपर। अगर मैं बात करता हूँ cd की, तो cd इज़ गिवन बाय 1 प्लस d बाय b। तो आपको डेप्थ ऑफ द फुटिंग पता ही है, तो आपने यहाँ पे 2 मीटर्स रखा, बट b आपको अभी भी यहाँ पे अननोन है, तो यू विल बी सिंपली प्लेसिंग द वैल्यूज हियर एंड यू गेट दिस cd एज 1 प्लस 2 बाय b। अब आप इन्हीं सबको अब आप इस इक्वेशन में रखेंगे, सो यू विल गेट इट एज 1.4 इंटू 12 माइनस 3 इंटू दिस टर्म विल बी द
सेम, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं हो पाएगा. इंटू दिस 40 mm का सेटलमेंट इंटू CW इज 1 इंटू दिस CD. ओके, सो वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन हियर. अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 126 इंटू b प्लस 0.3 बाय b का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 बाय b. सो दिस इज द वन इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग हियर. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लेके आते हो तो ये आपके पास इक्वेशन बन के आ रही है. अच्छा, एक और डेटा आपके पास दे रखा है, दैट इज नेट लोड. नेट लोड क्या है? QNS, दिस नेट लोड इज गिवन एज 1200 किलो न्यूटन. अगर मैं बात करता हूँ कि अगर प्रेशर की बात हो रही है ना, तो प्रेशर इज व्हाट, नथिंग बट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में इतना फोर्स लग रहा है. अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ लोड में तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा. लेट से अगर ये 1 मीटर स्क्वायर है तो लेट से अगर ये 5 मीटर स्क्वायर होता तो भाई ठीक है, 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस वैल्यू यू वुड हैव गॉट द वैल्यू दैट इज द लोड हेयर, जो कि यहाँ पे नेट लोड दे रखा है. तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है, QNS इंटू बी स्क्वायर अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बिकॉज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस फॉर्मूला हेयर. Okay, so 1200 into factor of safety by b square is equal to QNS. So you get QNS as 3600 by b square. तो आपके पास दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन इज दिस एंड द सेकेंड इक्वेशन इज दिस. तो दोनों से ही आपको क्या मिल रहा है? QNS. Now you will be equating the two terms that are there. Okay, so when you equate these two terms, the first is this 3600 by b square and the second is this 126 into b plus 0.3 by b का whole square into 1 plus 2 by b. When you equate this and you solve this, this equation you will be getting b cube plus 2.6 b square minus 27.28 b plus 0.18 is equal to 0. So when you solve this equation you will get the width as 4.08 meter. तो अगर मैं इस क्वेश्चन के डायग्राम की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके का था, जहाँ पे डेप्थ ऑफ द फुटिंग इज व्हाट 2 मीटर, राइट, एंड दिस इज द ग्राउंड लेवल, और जो यहाँ पे विड्थ ऑब्टेन हुई है दैट इज व्हाट 4.08 मीटर्स. ओके, सो दिस इज द स्क्वायर फुटिंग. अगर आप इसका टॉप व्यू की बात करोगे तो टॉप व्यू विल बी लुकिंग लाइक दिस. ओके, दिस इज द 4.08, this is again 4.08 meters. Okay, so this is the square footing that is obtained here. So with this we come to an end of this module, module number 2 here, and now we will be discussing this third module where we will be discussing the footing design and also the deep foundation. Major portion of this will be the deep foundation and a smaller portion will be the footing design of the shallow foundation. So let us see the course outcome here. This is designing the various types of shallow foundation and understand the basics of the deep foundation. So that is the course outcome that you will be understanding after the getting after the topic you understand. Now the different topics that will be covered will be, first is the design of the shallow foundation, isolated footing and the strip footings. नेक्स्ट इज द डीप फाउंडेशन, इट्स इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ फुटिंग्स के बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार के डीप फाउंडेशन होते हैं, पाइल्स फाउंडेशन क्या होते हैं, वेल फाउंडेशन क्या होता है, उन सभी के बारे में यहाँ पे हम कुछ बातें डिटेल में करेंगे. व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ डीप फाउंडेशन, वी विल आल्सो स्टडी दिस थिंग. नेक्स्ट इज द पाइल इंस्टॉलेशन, हाउ इट इज इंस्टॉल्ड एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइल्स, किस तरीके से आप उसको यूज़ में लेके आते हैं, दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट इज द पाइल ग्रुप्स. ओके, बिकॉज एक पाइल लगा देने से कोई फायदा नहीं होगा, बट अगर ग्रुप ऑफ पाइल्स लगती हैं किसी भी एरिया में तब इट विल बी प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ टू द फाउंडेशन एंड ऑल्सो द स्टेबिलिटी. सो वी विल ऑल्सो स्टडी द ग्रुप एक्शन ऑफ द पाइल्स इन द सैंड एंड द क्ले, बिकॉज हाउ दिस एंटायर पाइल ग्रुप विल बी एक्टिंग. अगर एक पाइल है तो वो किस तरीके का रिएक्शन दे रही है, और पूरा ग्रुप ऑफ पाइल्स है तो वो किस तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है. ओके, सो पाइल ग्रुप से हम बात करेंगे कि क्या है, जब हम पाइल ग्रुप के एक्शन की बात करेंगे तो मतलब कि किस तरीके से कर रही है. ओके, सो विल बी डिस्कसिंग द ग्रुप एक्शन ऑफ द पाइल्स देयर इन द सैंड एंड द क्ले स्ट्रेटम. नेक्स्ट इज द ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ द पाइल्स एंड देन इज द सेटलमेंट ऑफ पाइल्स, कितना सेटलमेंट उसमें अराइवल है, कितना होता है. नेक्स्ट इज द नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन दैट विल बी डिस्कसिंग अनदर टॉपिक, एंड देयर इज वन मोर टॉपिक दैट इज द अंडर रीम्ड पाइल्स. अब इसमें सिंगल और डबल अंडर रीम्ड पाइल्स होती हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज दिस डिज़ाइन ऑफ द शैलो फाउंडेशन. सो लेट अस नाउ बिगिन हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फुटिंग डिज़ाइन, और हम यहाँ पे फुटिंग डिज़ाइन किसकी कर रहे हैं, हम यहाँ पे शैलो फाउंडेशन की बात कर रहे हैं. अच्छा, जब शैलो फाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि कौन कौन से फाउंडेशन होंगे, किस किस फाउंडेशन की डिज़ाइन आप कर सकते हो, सारे की कर सकते हो देखा जाए तो
कुछ फाउंडेशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। इनके बारे में हमने सेकेंड मॉड्यूल में स्टार्टिंग पोर्शन में हमने डिस्कस किया था, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर रखी हैं। तो लेट अस सी वंस मोर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन। फर्स्ट इज द स्ट्रिप और द कंटिन्यूस फुटिंग, सेकेंड इज द स्प्रेड और द आइसोलेटेड फुटिंग, थर्ड इज द कंबाइंड फुटिंग, फोर्थ इज द स्ट्रैप और कैंटिलीवर फुटिंग, फिफ्थ इज द मैट और राफ्ट फाउंडेशन। अच्छा, अगर स्ट्रिप या कंटिन्यूस फुटिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे यदि लेंथ बहुत ही बड़ी हो, किससे, विड्थ से, तब दिस स्ट्रिप फुटिंग इज प्रोवाइडेड। ये इसकी प्रॉपर्टी भी होती है यही। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे कि दिस इफ आई टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रिप फुटिंग, तो यहाँ पे अगर आपने एक फुटिंग आपने प्रोवाइड करी, फिर उसके बगल में आपने दूसरी फुटिंग प्रोवाइड करी, फिर तीसरी फुटिंग प्रोवाइड करी, वो ना करके आपने क्या किया, एक स्ट्रिप फुटिंग ही पूरी प्रोवाइड कर दी। सो इफ़ यू आर डूइंग दैट थिंग देन इट इज़ ऑल राइट। सेकेंड इज स्प्रेड या आइसोलेटेड फुटिंग। मतलब क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल आपने फुटिंग प्रोवाइड करी, इट कैन बी स्टेप्ड अप, है ना, जिसमें स्टेप्स बने होते हैं, है ना, जैसे हवन कुंड होता है उस तरीके का रहता है ये। सो द स्प्रेड फुटिंग कैन बी डैट ऑल्सो। अच्छा, कंबाइंड फुटिंग की हम बात करते हैं तो ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर में अगर आप बात करो तो अगर मान लीजिए अगर ये एक फुटिंग है और ये दो कॉलम्स हैं, तो Q1 और Q2 दोनों अगर इक्वल हैं तब इट इज़ अ रेक्टेंगुलर फुटिंग। अगर मान लीजिए क्या हो कि एक साइड पे तो लोड ज़्यादा है, ओके, अगर इधर पे लोड ज़्यादा है और इधर पे लोड कम है, ओके, इफ दिस Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तब आप ट्रेपेजॉइडल फुटिंग प्रोवाइड करेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज द केस। नेक्स्ट इज द स्ट्रैप और कैंटिलीवर फुटिंग, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कब ये चीज़ यूज़ में आती है, ओके। एंड नेक्स्ट इज द मैट और राफ्ट फाउंडेशन, जो कि एक प्लेन पे पूरी तरीके से बिछाई जाती है ना। तो दैट इज़ देयर वन स्लैब इज़ देयर, ओके, क्योंकि हम बार बार अलग अलग फुटिंग ना दे के हम क्या करते हैं, हम पूरे सरफेस पे ही हम ये चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं। दिस फाउंडेशन इज कंस्ट्रक्टेड देयर। So these are the different types of the shallow foundation. Now one more important thing that we'll be discussing here and what we'll not be discussing in this entire topic. First is this, that we will be determining the depth of the footing, area of the footing, soil pressure, shear force and the bending moment. इन सभी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे जब हम इस मॉड्यूल में डिज़ाइन ऑफ फुटिंग पढ़ रहे होंगे। बट कितना रीइंफोर्समेंट लगेगा, ओके, कितने डायमीटर बार्स लगेंगे, we will not be discussing that thing. That will be covered in the RCC subject, okay, when the discussion will be going on upon this topic of footing, okay, footing design there. So we will be discussing only the basics, जहाँ पे soil का जो भी relation है, okay, तो soil pressure कितना लग रहा है, alright, shear force और bending moment कितना कितना आ रहा है, that we will be discussing in the detail. But बाकी और चीज़ें we will not be discussing here. That will be covered in the RCC subject. If you talk about the depth of the footing, so this depth of the footing is dependent upon the several factors. अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे depth of footing की, तो एक चीज़ समझिएगा क्या, कि if this is the ground level और this is the depth of the footing. अब देखिए एक केस तो ये भी हो सकता है कि ये footing यहाँ पे ground पे ही रेस्ट कर जाए, but that will not be the case, है ना। तो इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। So for today it's over. We'll be discussing the next thing, the depth of footing, in the next class. Thank you.